Good evening, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss the 5 questions that are based on elastic and inelastic collision. So, this is an important topic from 4th unit, work, energy, and power. And I am discussing this topic here because I think this topic, if I will cover this topic in class, then there can be a difficulty for you. So that's why we are going to discuss this one. I hope I know only one lecture of work, energy, and power I have delivered, and this is almost the last topic, collision. In my notes you can see collision in 3rd unit also, and collision in 4th unit also. 3rd and 4th in both the units, in both the notes. In both the notes, first this topic is covered, and firstly I will introduce you to elastic and inelastic collision. Then we will discuss the questions. So let's take a blank sheet here. Okay, so firstly I will discuss about the elastic collision. What will happen in the case of elastic collision? So marker, can I wait 1 minute. Okay, marker again. Okay, so firstly I will discuss about elastic collision. What do you mean by elastic collision? That we will discuss. So elastic collision, in the elastic collision, what will happen, that you have to see here. So in elastic collision there are two bodies. Basically there are two bodies as shown in figure. Here I will make a figure. Suppose this one is red, one is body 1, elastic collision, and this red one is body number 1. This red one is body number 1, and this sky blue or blue is body number 2. And we have to assume that it is moving with velocity u1, it is moving with velocity u2. u2 can be 0 also. Students, remember, u2 can be 0 also, but I am not taking it as 0. यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख रहा, I am taking it as u2. So this topic is about the elastic collision, है ना? Elastic collision. Okay, so we are discussing the elastic collision here. Okay, so elastic collision we are discussing here, and we have to take one condition. One condition is that our u1 should be, this is the given condition, because collision is possible only if u1 will be greater than u2. Obviously collision कब होगा, देखो ये रेड वाली बॉडी, दिस रेड बॉडी विल collide with blue one when u1 will be greater than u2. जब u1 की वैल्यू बच्चे u2 से ग्रेटर होगी तभी कोलाइड करेगा. u2 रेस्ट पे भी हो सकता है, u2 मोशन में भी हो सकता है. यू कैन अज्यूम इट, यू कैन फील इट. आप देखो ये बॉडी यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है. सपोज लेट्स, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ. सपोज दिस इज़ अ रेड बॉडी एंड ये रेड बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है. अब क्या हुआ, सपोज ब्लू बॉडी इज एट रेस्ट, ब्लू बॉडी रेस्ट पे है. देन ये क्या करेगा, इस तरफ जाएगा इस तरह से इसके साथ कोलाइड कर देगा. दैट मीन्स कोलिजन के बाद क्या होगा,
ये ब्लू वाला भी मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन ब्लू कैन मूव, बट बिफोर कोलिजन ब्लू कैन बी इन मोशन, ब्लू कैन बी इन नॉट इन मोशन। लेट्स सपोज वन मोर एग्जांपल। पहले फर्स्ट में एग्जांपल में समझो, ब्लू इज एट स्टेशनरी, ब्लू वन इज एट रेस्ट। ब्लू वन कहाँ पे है? रेस्ट पे। तो इस तरफ से रेड वन जाएगा और इसके साथ कोलाइड करेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोलाइड करेगा। देन ब्लू वन भी मूव कर सकता है, हो सकता है रेड वन रुक जाए, हो सकता है रेड वन भी चलता रहे। सो दैट आर असम्पशन, तो वो बात की बातें हैं। लेकिन पहले क्या होगा, रेड वन इसके साथ कोलाइड करेगा। दिस इज फर्स्ट केस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चे, रेड वन हमारा है और ब्लू वन भी है, लेकिन ब्लू वन का क्या होगा, देखो दिस इज ब्लू वन, ठीक है। ब्लू वन कहाँ पहुँच गया सपोज, ठीक है, ब्लू की स्पीड थी, ब्लू की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर में यहाँ पहुँचा ब्लू वन। अब रेड वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो रेड वाले की वेलोसिटी ले ली हमने 5, तो रेड वाला ब्लॉक ये ले लिया मैंने, ठीक है। सो रेड वाला ब्लॉक यहाँ से 5 डिस्टेंस ट्रैवल कर किया, अभी ये कोलाइड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ब्लू कहाँ पहुँचेगा, नेक्स्ट टाइम ब्लू पहुँचा सपोज यहाँ से यहाँ, और इस टाइम हो सकता है रेड वाला कोलाइड कर जाए। तो रेड वाला कोलाइड कब करेगा, जब रेड वाले की वेलोसिटी ब्लू वाले की वेलोसिटी से ये यहाँ से यहाँ अब कोलाइड करेगा। सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम, हमें दो चीज़ें समझनी है। फर्स्ट थिंग दैट u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, u1 की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए u2 से, तभी कोलिजन होगा, फर्स्ट थिंग। देन हमें समझना है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा और इन इलास्टिक में क्या होगा, तभी ये न्यूमेरिकल्स आपसे हिलेंगे, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ बिल्कुल नहीं आने वाले। सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देन लेट्स अज्यूम नाउ आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंड दिस इज माई रेड वन, ये मेरा रेड वन रहा। वेट करना बच्चे, कंट्रोल वाई, ओके, बैक बटन, ओके, इरेज, क्लोज। सो नाउ दिस इज माई रेड वन, दिस इज माई रेड वन एंड दिस इज माई ब्लू वन, ठीक है। अब कोलिजन हो गया, कुछ चेंजेस वगैरह हो गई, तो क्या चेंजेस हुई, लेट्स मेंशन दैट चेंजेस। दिस इज नाउ मूविंग विद, ओके, ठीक, कंट्रोल Z, ओके। Now this is moving with V1, first body is moving with V1 and the second body is moving with V2. I hope up to this point everything is clear. अच्छा बच्चे, one thing you have to remember, in the elastic collision bodies will move separately, बॉडीज सेपरेट होके मूव करेंगी। लाइक यहाँ पे देखो बॉडीज एक दूसरे के सेपरेट है, यहाँ पर भी बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, देन जल्दी से सेपरेट हो जाएंगी विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो व्हाट वी हैव टू सी ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, आई हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू नोट डाउन सम कंडीशंस। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, द मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेकेंड थिंग इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। हम क्या अज्यूम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता इन द इलास्टिक कोलिजन, वी अज्यूम दैट नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज देयर। सो इतना डायग्राम बच्चे नोट कर लो, प्लीज़ नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट। देन हम मोमेंटम वाले केस से एक कंडीशन लेते हैं, लेट्स टेक मोमेंटम, मोमेंटम से हम कुछ लेते हैं ना, दिस इज माय मास m, चलो अब हम मास लेंगे इनका, ठीक है। सो दिस इज हैविंग द मास m एंड लेट्स अज्यूम दिस मास इज m1, दिस मास इज m2 and obviously mass of the body will not change, only velocity will change, so it is m1 and this is having the mass m2. So what will happen here, according to the condition of momentum,
according to the condition of momentum, m1 into u1 m1 into u1 plus m2 into u2 m1 into u1 plus m2 into u2, this is equal to, this is the initial momentum before the collision, so this is equal to m1 into v2 m1 into v1, this is equal to m1 into v1 plus m2 into v2, so this is equal to m2 into v2. But please note down up to this point. Please note down. I hope you have noted up to this point, and the equation I got is, after this rearrange it, take the m1 on one side, take the m1 terms on one side, so this is equal to m1 into u1 minus v1, so m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2. So this is the equation that we got from the momentum. So this is the equation, you can note down this as the equation number 1. You can note down it as a equation number 1. Now I will take you to one more sheet where we can do the rest of the calculation. Okay, this calculation will be also there. Okay, let me take the screenshot of this calculation, because if I will take, okay, let me take the screenshot of this tool. Okay, let me take the screenshot of this expression so that we can use it. Okay, now I have to erase it. Okay, so copy and okay, now I have to paste it here. So this is the expression, control B, okay, control B, okay. So this is the expression for elastic collision we have done up to this point. Now I am doing the next calculation, so you can note down that. Up to this point, anyone having doubt, please you can ask. So second thing is, kinetic energy of the system remains constant. So kinetic energy will not change. That means initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. So now I am going to write that expression. So u1, u2 are the initial velocities and v1 and v2 are the final velocities. So what will happen now? See, now what will happen? Initial kinetic energy half m1 into u1 square plus half m2 into u2 square, it is equal to half m1 into v1 square
plus half m2 into v2 square. So after this you can cancel out 1 by 2 common. 1 by 2 is present on left hand side as well as right hand side, so you can cancel this 1 by 2. You are left with, rearrange this statement, you are left with m1 into u1 square minus m2. Okay, m1 is common, so u1 minus v1 square is equal to m2. So this is m2 bracket v2 minus v2 square minus u2 square. So this is just a rearrangement. The questions I will start at 20 minutes, at the time 20 minutes, because the revision will take some time. So this, let's take this as equation number 2. Let's take it as equation number 2. Now you can see what is equation number 1. Equation number 1 is, okay, let's take another screenshot so that it is more clear, it will be more clear. So let's take the screenshot again, new screenshot. Okay, so okay, copy, erase this one. Okay, now we have the two equations. This is the equation number 1, which is based on the momentum, and this is the equation number 2, which is on the basis of kinetic energy, concept of kinetic energy. So this is all about the elastic collision. You can see here, firstly two bodies are there, and the first equation we got on the basis of conservation of momentum, and the second equation we got from conservation of kinetic energy, because we are taking that there is no loss of kinetic energy during the elastic collision. So students, what we have to do, we have to divide the equation number 2 by 1. We have to divide the equation number 2 by 1. So what will happen here, we have to divide the equation number 2 by 1. So equation number 1 is m1 into u1 minus v1. Okay, then this is equation number, right hand side will be also divided by the right hand side, left hand side will be divided by left hand side. So m2 was equal to v2 minus u2. So what you have to do now, you have to firstly cancel m1 with m1, m2 with m2. Then you have to open the formula in numerator, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Then these terms will also cancel out with the minus term. So you will be left with u1. This is the final expression I am telling. You will be left with u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. This is the expression you will left with. Please note down this expression. This expression is very important. And finally I am writing one more expression that you have to remember. Okay, that is this one, u1 minus u2 is equal to u1 minus u2 is equal to, यहीं से बच्चे थोड़ा सा रीअरेंज करके आएगा, इट इज़ so v2 minus v1. So u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. अच्छा, इतना बहुत है इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. दिस इज़ इनफ. आई विल डिस्कस इन इलास्टिक कोलिजन, जब क्वेश्चन करेंगे तभी डिस्कस कर लेंगे. सो यू कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट.
यहाँ तक यू कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट। इससे पहले जितना भी बच्चे किया है उसको एक बार नोट डाउन कर लें प्लीज़। दिस इज़ द एवरीथिंग वी हैव डन, ये सारा मैं हम बता चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ देयर, then conservation of kinetic energy is there, and after the kinetic energy you have to divide the equation number 2 with 1, and when you will divide the equation number 2 with 1, this you will get u1 minus u2 finally equal to, so this is all about the calculation part. Okay, so you can note down the every calculation, and now we are going to start the questions. So now I am going to take you to another PDF, another image. No. So here is the first question. First question is based on the inelastic collision. So I will do it later. I will do it later on. Second question is also based on the inelastic collision. So we will do it later on. Okay, third question. We will do the third question. So he is saying a body of mass m has initial velocity v, having makes a head-on collision with a stationary body of mass m. After the collision, the body of mass m comes to rest, and only the body having the mass m moves. This will happen only. So he is asking this will happen. What he is actually saying, if you will observe, if you have read the statement carefully, then you will observe this is the first body having mass m, and this is the second body. This is the second body having mass capital M. So what he is saying here, he is saying that, बच्चे थोड़ा डायग्राम बड़ा छोटा डायग्राम हो सकता है, बट यू हैव टू टेक इट इक्वल. आपको ऐसा नहीं अज्यूम करना कि कोई बड़ी बॉडी है या छोटी है. आई हैव जस्ट टेकन एज अ एग्जांपल. सो नाउ ही इज सेइंग आफ्टर द कोलिजन this m is capital M is moving, but the small m is now stationary. So this is small m now stationary. So I will mention that everything here. I will mention here, don't worry. So what he is saying that this is moving with the velocity v, initial velocity v, and this has velocity 0. This is stationary, that means its velocity will be equal to 0. But after the collision he is saying that it is stationary, small m is stationary. यही बोला है ना बच्चे, small m comes to rest and this is moving. Okay, so that means this mass will move. चलो अब ये मास मूव करेगा ना, ये मास मूव करेगा. लेट्स अज्यूम दिस इज हेड ऑन हेड कोलिजन है, तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ, सो हमने इसकी वेलोसिटी ले ली v2. So now what will happen? Firstly you have to apply the law of conservation of momentum. Conservation of momentum का लॉ लगा लो पहले तो. ठीक है, पहले तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, सो m इंटू वी स्क्वेयर. सो दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, हाफ m इंटू वी टू स्क्वेयर. दिस इज द राइट वन. m इंटू वी टू स्क्वेयर इज राइट वन. कहीं गलती तो नहीं है, कोई चेक करना बच्चे प्लीज चेक. हाफ m इंटू वी स्क्वेयर is equal to half m v2 square. We don't know the value of v2. We don't know the value of v2. And the another equation that we got is, एक और हमें equation मिलेगी, that is by momentum. So momentum से हमें क्या मिलेगा, from the equation of momentum, because we don't have any value, हमें कोई constant value given नहीं है,
So from the equation of momentum, m into v, this is small m into v, and this is equal to, this is equal to capital M into V2. So from this expression we are also getting nothing. We are not getting nothing from these two expressions. So we have to remember इलास्टिक कोलिजन एक्सप्रेशन. अच्छा, इलास्टिक कोलिजन का एक्सप्रेशन याद करो बच्चे, वो याद करना पड़ेगा अब हमें, है ना, जो अभी हम करके हटे हैं. दैट इज़ U2, है ना, सॉरी, दिस वाज U1. ये हमने U1 लिया हुआ था ना, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया था, U1 माइनस V1, सॉरी, U1 माइनस U2, जो फाइनल आया था लास्ट वन, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू, दिस वाज V1, ये V1 था, दिस वाज इक्वल टू V2 माइनस V1. अच्छा बच्चे, ये एक्सप्रेशन था, याद कर लो एक बार. थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी जब फर्स्ट एंड सेकंड टाइम करोगे. दिस वाज V2, ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन U1 माइनस U2, V2 माइनस V1. तो एक बार याद कर लो अच्छे से, फिर से एक बार ट्राई करें दोबारा. सो आई विल मेंशन ऑल द वेलोसिटीज़, यहाँ पे मैं सारी मेंशन कर दूँ. दिस इज़ फर्स्ट ला इज़ U1, ये U1 होती है. दिस इज़ U2, दिस इज़ V1 एंड दिस इज़ V2. सो इस एक्सप्रेशन से हमें कुछ मिलेगा. सो U1 माइनस U2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0. सो इसकी भी वैल्यू पुट कर लें पहले V, U1 माइनस U2, सो दिस इज़ U2. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, U1 पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं. U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन गेट समथिंग, हमें यहाँ से कुछ मिलेगा. सो U1 इज इक्वल टू V माइनस U2 इज इक्वल टू 0, U2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, नाउ V2 इज इक्वल टू, V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, सो V2 हमें फाइंड आउट करना है. V1 इज 0. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट द एक्सप्रेशन दैट V2 इज इक्वल टू V. तो V2 की जितनी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जितनी V की थी. सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू V. आई होप यहाँ तक समझ आ गया अब आपको. अब बच्चे ये समझो, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मेरे पास ये बॉडी जा रही थी, दिस बॉडी वाज कोलाइडिंग विद दिस वन. अच्छा, एक बार इरेज करके बनाते हैं अच्छे से, है ना. दिस बॉडी वाज गोइंग विद द वेलोसिटी V, it collides with the body whose velocity was 0, and after the collision this first body is now stationary and the second body is moving with the velocity V. तो ये कहानी है इस कोलिजन की. ठीक है, कौन सी बॉडी कैसे मूव कर रही है. इसका मास था m, इसका मास था कैपिटल M, ठीक है, एंड इसका मास फिर से m स्मॉल m, एंड इसका मास फिर से कैपिटल M. तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, उसने हमसे पूछा था कि कंडीशन बताओ जिससे, ठीक है, जिससे स्मॉल m रेस्ट में आ जाए. सो स्मॉल f फॉर द स्मॉल m टू बी इन रेस्ट, हमने कंजर्वेशन वाली कंडीशन लगाई, मोमेंटम कंजर्वेशन, और U2 माइनस U1 इक्वल टू V2 माइनस V1. वो कंडीशन लगा के हमने देखा हमारी इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, सेकंड बॉडी कैपिटल M की V. अब हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है. सो स्मॉल m इंटू कैपिटल, स्मॉल m इंटू V प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी इज विच इज एट रेस्ट इज 0. दिस इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. सो मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज फर्स्ट बॉडी इज 0 and the another body is m into V. So 0 plus, so this is equal to m into V is equal to capital M into
v. So v and v will get cancel out. So v and v will get cancel out. So that means this case will happen only, ये केस तभी होगा जब पीछे वाली बॉडी मूव करेगी, फाइनली पीछे वाली बॉडी रुक जाएगी पहले वाली और दूसरी मूव करेगी उसी वेलोसिटी से. ये केस कब होगा? व्हेन मास बोथ द बॉडीज हैव सेम मास, जब दोनों बॉडीज का मास सेम हो. स्मॉल m की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल M. In that case only this will happen only when the both bodies have same mass. तो कंसेप्ट को एक बार समझे दोबारा से. समझना कैसे है, पहले u1 देखो, u1 की वैल्यू माइनस u2 इक्वल टू, ठीक है, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1. ठीक है. सो फर्स्ट बॉडी की टर्म है 1 एंड सेकंड बॉडी की 2. सो पहले फेज में फर्स्ट बॉडी जा रही है विद द वेलोसिटी v माइनस पहले इनिशियली सेकंड बॉडी 0. उसके बाद सेकंड बॉडी जा रही है विद वेलोसिटी हमें नहीं पता, सो वी टेक इट एज v2. सो देन v1 हमें पता है, रेस्ट पे आ गई, दैट मीन्स 0. सो फ्रॉम दिस वी गेट द एक्सप्रेशन दैट v2 इज इक्वल टू v. तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो सेकंड बॉडी है वो जो फर्स्ट बॉडी जा रही थी जिस वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी से चली जाएगी. वैसे भी बच्चे समझ सकते हो, एक वैसे अगर कंसेप्ट की बात की जाए, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन. इफ इट इज़ बॉडी 1, वेट, इफ इट इज़ बॉडी 1 एंड इफ इट इज़ बॉडी 2, ठीक है. आफ्टर द कोलिजन आई एम सेइंग दैट दिस बॉडी विल स्टेशनरी एंड द अनदर वन विल बी मूविंग. तो बच्चे होगा क्या, देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो व्हाट विल हैपन हियर. इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, दिस बॉडी हैज सम काइनेटिक एनर्जी, वो इसके बीच में ट्रांसफ़र हो गई. दैट मीन्स आफ्टर द कोलिजन सपोज इसके पास 100 जाउल एनर्जी थी, ठीक है. दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट, एक समझो, 100 जाउल एनर्जी थी और 100 की 100 जाउल इसने इसको दे दी. इसके पास पहले 0 थी और अब इसके पास 0 रह गई और इसके पास 100 चलेगी. तो फर्स्ट थिंग तो हमें यहीं से पता लग गई कि देखो अगर ऐसा होगा, लॉस नहीं होगा एनर्जी का, तो दैट मीन्स दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी. जिस वेलोसिटी से ये बॉडी मूव करेगी उसी वेलोसिटी से ये भी करेगी. बट अभी हमें इसका मास श्योर नहीं था, हाँ एनर्जी सेम होगी लेकिन वेलोसिटी वी कैन नॉट सी, वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते बिकॉज मास चेंज हो सकता था. सो हमें पूरा कंसेप्ट लेके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, दैट्स वाई. बाकी शॉर्टकट मैं ट्राई कर रहा था बट आई थिंक शॉर्टकट यहाँ पे नहीं यूज़ होगा. सो वी हैव टू यूज़ द कंप्लीट मेथड, हमें कंप्लीट मेथड यूज़ करना पड़ेगा. तो शॉर्टकट इसमें यूज़ नहीं होगा. योर फाइनल आंसर विल बी दिस वन, सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, टॉपिक नया है बिल्कुल, ठीक है. अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड ठीक है. ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन नाउ. फोर्थ क्वेश्चन, हाँ इलास्टिक कोलिजन का सेकंड है. टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज पार्टिकल P एंड Q इक्वल मास ट्रैवलिंग अलोंग अ लाइन जॉइनिंग देम विद वेलोसिटी 15 10 आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिव वेलोसिटी. तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है. रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछी है. सो दिस इज बॉडी 1, इसको P ले लें, इसको Q ले लें. देन ये कोलिजन के बाद का केस हो गया, ठीक है, P एंड Q. ठीक है, ट्राई करते हैं. So this is after collision and this is P, this is Q. So these are the important questions which are based on collision. So this is moving with the, अच्छा मास इनका सेम है, इसका भी मास m ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा शायद क्वेश्चन. इक्वल मास, सो इक्वल मास केस इज दिस वन. तो मास का केस इक्वल है बच्चे, थोड़ा सा शायद इजी हो जाए. चलो देखते हैं. सो दिस इज़ हैविंग द वेलोसिटी 15, इसकी वेलोसिटी 15 है, इसकी वेलोसिटी 10 है एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी नहीं पता हमें, है ना, यही तो पता करनी है, यही तो हमें पता करनी है. v1 एंड v2, v1 एंड v2 वी हैव टू फाइंड. ओके, अप टू दिस पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं. ओके, नाउ वी हैव टू ट्राई दिस वन. क्या करें,
हाँ, वी हैव द फार्मूला, ठीक है, u1, ओके, फार्मूला इज u2 माइनस u1, अच्छा u2 नहीं था भाई, u1 था, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 minus v1. This is the expression of elastic collision at the end. So what we get here, we will get u1 की value 15, so 15 minus 10 equal to v2 minus v1, so v2 minus v1 is equal to 15 minus 10, so that means v2 minus v1 is equal to 5. Please note down up to this point, v2 minus v1 is equal to 5. Now we have to apply the conservation of momentum also. So please note down up to this point. I hope you have noted up to this point. Now we have to apply law of conservation of momentum. So now we have to apply the law of conservation of momentum, that is saying that initial momentum of system is equal to final momentum. So momentum is now 15 into m, 15 into m plus 10 into m plus 10 into m is equal to v1 into m, v1 into m plus v2 into m. So this is the momentum condition. I hope you can easily understand this one. M is a common on both sides because mass of the two bodies are equal. So take the m common and cancel out it. Take the m common and cancel out it. Then you will observe that v1 plus v2 is equal to 25. This is the another expression. So now I am going to clear this whole screen. You can note down up to this point. Okay, now I am going to clear this one. Okay, so we have the two expressions. One is v1 minus, okay, v2 minus v1 is equal to 5. One expression v2 minus v1 is equal to 5. एक इक्वेशन हमारे पास ये है. The another one is v1 plus v2 is equal to v1 plus v2 is equal to, हमारे पास अभी आया था एक्सप्रेशन that is equal to 25. So if I add these two equations, v1 will cancel out, so 2v2 is equal to 30. So that means v2 is equal to, ये हमारा बच्चे v2 था जो सेकंड बॉडी मूव कर रही है विद द फाइनल वेलोसिटी, सो दिस कम्स आउट टू बी 15. ये हमारा v2 आ गया 15, और अगर v2 15 आ गया तो इस इक्वेशन में v2 की वैल्यू पुट कर दो, 15 माइनस v1 इज इक्वल टू 5, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी v1 की भी, और v1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10. देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 5 है और दोनों का सम 25 है. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमें क्या क्या यूज़ करना था, एक तो हमें इलास्टिक कोलिजन का लास्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना था, दैट इज़ u2 माइनस u1, ठीक, u1 माइनस u2, हाँ, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, वो एक्सप्रेशन यूज़ करना है. एंड वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम की कंजर्वेशन का हमें प्रोसेस यूज़ करना है. सो दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. वी आर लेफ्ट विद वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है इलास्टिक कोलिजन का, आई थिंक. ओके, ठीक है बच्चे. नाउ सी द अनदर वन क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन. द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन. सो इन इलास्टिक की भी अभी बात करेंगे. इन इलास्टिक में क्या होता है,
फर्स्टली वी हैव टू कंसिडर दिस वन, तो एक और क्वेश्चन कर लें इस बेसिस पे। सो दीज आर द 4 बॉडीज, टू आर आफ्टर द कोलिजन, 2 आर बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो डायग्राम तो आई थिंक आपको पता लग ही गया है, अब समझना है, ठीक है। शेप थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, डोंट वरी अबाउट दैट, शेप का टेंशन मत लेना। सो ओके, मार्कर, शेप की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। सो दिस इज आफ्टर द कोलिजन, ये बॉडी है हमारी ए, मास ए इज मूविंग, ओके मास ए ले लिया इसको, ठीक है। मास ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, तो ये वेलोसिटी v1 थी इसकी, और ये कोलाइड किया b के साथ, तो b रेस्ट पे है, b की मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 0। देन मास इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ a, तो इसका मास ले लिया हमने ma, ठीक है। इसका मास हो गया ma और इसका मास हो गया mb, और तो इसको ट्वाइस ले लें, ट्वाइस ऑफ 2ma है ना, तो 2ma ले लेते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। देन आगे कंटिन्यू करें। आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दैम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें पता ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखो, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी तो आफ्टर द कोलिजन होगी। सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन विल बी ऑल्सो सेम। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं बिफोर द कोलिजन, अगर हमें कोलिजन से पहले पता होगी तो हम बाद की बता सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ ए, और ए के साथ वेलोसिटी है v1 स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, and initial kinetic energy of body P is 0 because it is stationary, ये हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही, दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए इंटू वी1 स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हाफ एम ए इंटू वी1 फर्स्ट, सो बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाफ एम ए इंटू वी1 स्क्वायर। तो गलती नहीं करनी बच्चे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर मार्क करना है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। सो 3 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2 विच आर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। हाँ जी, अब हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 50 ग्राम बुलेट। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है ये तो हमने बताया ही नहीं है ना। तो इन द इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज माय बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी थी, चलो मास ले लेते हैं या टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। और होगा क्या इसमें एक्चुअली, एक यहाँ से बॉल जाएगी इस तरह से, जहाँ कोई बॉडी जाएगी, ठीक है, ठीक है, और दिस इज द बॉडी। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द कोलिजन, ये बॉडी जाएगी देखो इस तरह से, यहाँ से मैं थोड़ा सा 3D मोशन में लेके आता हूँ फ्रेम को। सो दिस बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, इन दिस वे दिस बॉडी विल बी एम्बेडेड इन टू इट, ये इसमें घुस जाएगी बॉडी। या ऐसा बोल लो कि दोनों बॉडीज एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी। आई एम रिपीटिंग, दिस इज द बॉडी, कंडीशन वही है, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, वही कंडीशन है, तभी कोलिजन होगा। अगर u1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए इनिशियल, तभी कोलिजन होगा। सो दिस बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगी, या तो इस बॉडी के अंदर घुस जाएगी, जैसे हम ले लें कि एक टारगेट है और टारगेट को एक रबड़ की बॉल है और उसमें एक बुलेट जाकर हिट करती है और बुलेट उसमें
साथ मूव करती है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक के बॉडीज एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी। नाउ आफ्टर दिस बॉडी, ये जो बॉडी है, जैसे हम यहाँ पे लें, ये जो बॉडी है, अब ये बॉडी यहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब देखो है क्या एक्चुअली, बिफोर द कोलिजन क्या है, ये ब्लू बॉडी अलग है और ये दूसरी बॉडी अलग है। बट आफ्टर द कोलिजन दीज टू बॉडीज विल बी मूविंग विद सेम, ये इकट्ठी मूव करेंगी, टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, दिस वन। सो दिस इज द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देखो समझना अच्छे से। दिस बॉडी विल कोलाइड विद दिस वन, ये इसके साथ कोलाइड करेगी, एंड दिस विल बी द रिजल्ट कि दोनों इकट्ठी मूव करेंगी, बोथ विल मूव टुगेदर। सो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 ग्राम का बुलेट है एंड इसकी वेलोसिटी वगैरह दी हुई है शायद, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। सो 10 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ दिस bullet. Then what he is saying this is a body of 950 ग्राम, ठीक है, बड़ी बॉडी है थोड़ी, 950 ग्राम की, तो 50 ग्राम की गोली इसमें आकर लग सकती है, ठीक है। 950 ग्राम का ब्लॉक है ना, ब्लॉक ऑफ मास। सो इट इज़ एट रेस्ट। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, ये नोट कर लेना अच्छे से, दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 0 मीटर पर सेकंड, ये था 10 मीटर पर सेकंड। So I hope up to this point everything is clear. Now see this one is of 50, ये 50 ग्राम भी इसमें इंक्लूड हो गया। पहले कितना था, 950, ठीक है, मतलब बड़ी बॉडी कितने की है, 950 की, छोटी बॉडी कितने की है, 50 की, तो दोनों का मास मिला के कितना हो गया, 1000 ग्राम। मास ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1000 ग्राम। समझ आ गया सबको। अब ये 1000 ग्राम किसके साथ मूव करेगा, 1000 ग्राम की वेलोसिटी सेम होगी। 1000 ग्राम की वेलोसिटी एक कंबाइंड वेलोसिटी हो जाती है, जिसको बोलते हैं VC। VC क्या हो जाता है बच्चे, VC इज द कंबाइंड वेलोसिटी। इसमें डिफरेंट वेलोसिटीज नहीं होती दो बॉडीज़ की, जैसे हमने लिखा था V1 एंड V2, तो इसमें कंबाइंड वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। और कंबाइंड वेलोसिटी निकालते टाइम एक और चीज़ होती है यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस भी हो जाता है ना। तो हम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया है, देन वी कैन कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करते हैं। सो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देन लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ वी विल फाइंड, हम क्या करेंगे यहाँ से पहले VC फाइंड आउट करेंगे। VC कैसे फाइंड आउट करेंगे, VC में इस केस में भी बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा, वही लगाएंगे। सो मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज 10 × 50, वही लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह वैलिड है। सो 10 × 50 प्लस 950 का मोमेंटम क्या था, 0, इट इज़ इक्वल टू, अब मास कितना हो गया, 1000 हो गया ना मास, और वेलोसिटी कितनी हो गई, VC। समझ आया सबको। मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम इज 10 × 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000 × VC। VC इज व्हाट, VC इज द कंबाइंड वेलोसिटी, और यू कैन से वेलोसिटी आफ्टर द इन इलास्टिक कोलिजन। तो VC की वैल्यू फाइंड आउट कर लो जल्दी से। VC इज इक्वल टू 1/2 आई थिंक, है ना। VC इज इक्वल टू 500/1000। सो VC कम्स आउट टू बी 1/2, ठीक है। VC आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, VC इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी और सिस्टम के बाद कितनी थी। यहाँ तक बच्चे प्लीज़ नोट कर लें, अप टू दिस पॉइंट प्लीज़ नोट डाउन, बिकॉज आई हैव टू इरेज इट, ठीक है। नाउ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, इसकी हाफ, मास वाज 50,
ठीक है। तो अगर ग्राम ले रहे हैं तो ग्राम इस साइड भी ले लें, राइट हैंड साइड पे भी ग्राम ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी। हाँ, अगर किलोग्राम में चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि राइट साइड पे आप किलोग्राम ले लें, या तो दोनों साइड ग्राम लो या फिर दोनों साइड किलोग्राम लो। सो दिस इज 1 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 10, हाफ एम वी स्क्र, हाफ एम वी स्क्र। ठीक है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल, और फाइनल हमारी कितनी हुई, हाफ। मास हो गया बच्चे 1000। ठीक है, मास हमने देखा कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो अगर दोनों साइड या तो ग्राम ही लो या फिर दोनों साइड किलोग्राम लो, आंसर मैटर नहीं करेगा। अगर दोनों साइड ग्राम ले लोगे आंसर सेम रहेगा, अगर किलोग्राम ले लोगे तो भी सेम रहेगा। सो हाफ इंटू 1000 इंटू हाफ, बिकॉज वेलोसिटी वी सी वाज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ। तो हाफ आया था मेरे पास, 1/2 वाज वेलोसिटी वी सी। तो चलो अब काइनेटिक एनर्जी ये देखो कितनी आई, दिस इज कम्स आउट टू बी, ये आ गई मेरी 2500 2500 जाउल वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कितनी आई बच्चे, 2500 जाउल। किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। देन दिस वन, लेट्स चेक दिस वन। तो इसको कैलकुलेट करो 1000/8। सो 1000/8 को कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 125। सो दिस इज 125 जाउल। तो काफ़ी एनर्जी चली गई हमारी। सो दिस इज 125 जाउल, काफ़ी एनर्जी चली गई। अब कितनी चली गई वही देखनी है हमें, है ना। सो द काइनेटिक एनर्जी, द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, है ना, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। यू कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट। लॉस काफ़ी हुआ है, कितना हुआ है देखने हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है ना, 25 से हमारी 150 रह गई है। तो जल्दी से नोट कर लें अप टू दिस पॉइंट। वैसे मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है, यूर आंसर विल बी 95%। 95% एनर्जी लॉस हो गई है, काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन नोट डाउन, अब यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम बताते हैं। ओके, आई एम रेजिंग दिस वन। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया और ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब काफ़ी कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमने कैलकुलेट किया 2500 कितना था, 25 वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड 125 वाज द फाइनल। तो जब हम डिक्रीज चेंज करते हैं, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड। सो वी विल फाइंड राइट हेयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। आपने किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस, या परसेंटेज चेंज, है ना। सो दिस इज 100। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल ऑब्जर्व दैट, अच्छा कैलकुलेशन करोगे तो 2500 की जगह क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, 23 आएगा बच्चे, बिल्कुल जी, 2375, है ना, 2375 बाय 25। when you will divide it you can observe that this will become equal to 95%. this is equal to 95%। that means जब इस तरह का कोलिजन होगा, ठीक है, जब इस तरह का इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 95%। सो दिस इज़ द केस एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इनइलास्टिक कोलिजन को, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो कहीं पे ज़रूरत लगती है उस हिसाब से हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 95% ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we are going to do the last question of this video. I am raising it now, you can note down. तो एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, होमवर्क के लिए दे दें, नहीं चलो खुद ही करते हैं। So this is the another question. The block of mass m moving with the constant velocity 3v collide with another block of mass m at rest. After the collision both join and composite block will move with the velocity. तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मेरा मास था, ठीक है, कैपिटल M, और वेलोसिटी 3v। ठीक है, 3v मतलब 3v दिया हुआ है तो 3v ही लेंगे, कोई बात नहीं।
So 3v is the mass velocity, and now another block which is having the mass, इसका मास कितना है भाई, इसका मास भी m ही है ना, लेकिन ये क्या है, रेस्ट पे है। अब देखो ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए, इनका मास दोनों का कितना हो गया, 2m हो गया, ठीक है। देन 2m एंड देन 2m विल मूव विद द वेलोसिटी, तो ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी विल डू, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो m, कैपिटल M इंटू 3v है ना, इनिशियल मोमेंटम प्लस 0 बिकॉज द मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इज 0। सो दिस इज इक्वल टू द मोमेंटम, दिस इज vc कंबाइंड वेलोसिटी है ना, composite block velocity of composite block. So this is equal to 2m into vc, vc is the combined velocity. So m and m will cancelled out, this m and this m will cancelled out, so you can get vc equal to 3v by 2. So vc is equal to 3v by 2. So this is the another question जो थोड़ा जल्दी हो गया। सो हमारा आंसर आया 3v/2, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो बच्चे करना क्या है, देखो इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज़ पहले भी सेपरेट थी, बाद में भी सेपरेट रहेंगी। हाँ, वेलोसिटी चेंज उनकी हो सकती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में बिफोर द कोलिजन बॉडीज़ आर सेपरेट, बट आफ्टर द कोलिजन बॉडीज़ आर कंबाइंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और 5 questions we have discussed in this video. In the first 20 minutes we have discussed about elastic collision derivation. तो उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।